بادشاہ نال دعویٰ دیتا ہے کہ کیا پہلی باری تسی سجدہ نہیں کیتا تے دوجی باری کرنا دے تے جے نہ کیتا تے تانوں کتھے ڈال دے گا آگ دی تمہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا اور پھر دیکھنا تمہیں کون سا معبود میرے ہاتھ سے چھڑائے گا. کہتا کیا ہے بادشاہ؟ کہتا ہے تم نے اب اگر سجدہ نہ کیا تو کیا کیا جائے گا؟ تم اب فائنل ہے، میرا حکم اب فائنل ہے، تمہیں تھرڈ چانس نہیں دیا جائے گا، تمہیں آپ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا اور کوئی معبود تم کو میرے ہاتھ سے چھڑا نہیں سکے گا. لیکن واٹ ہیپن؟ صدق مصر عبدالجو کا جواب سنیے گا. پہلا چانس انہوں نے مس سے انہوں نے کہا ہم نے مورت کو سجدہ. دوسری دفعہ جواب سنیے گا. صدق مصر صدق اور مصر اور عبدالجو نے بادشاہ سے عرض کی اے نبوکدنصر اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے. کہتے ہیں ایسی طرح جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے، تیری گالی سمجھنی ضروری نہیں ہے. کیا؟ دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہمارا خدا جس کی ہم ایمان دیکھے. کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سونے کی مورت کے آگے سجدہ کر، لیکن ہم تجھے بتاتے ہیں کہ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. They stand on faith. انہوں نے کہا ہم ایمان پہ کھڑے ہو جائیں گے. اگر تو کہتا ہے کہ میں تجھے آپ کی بھٹی میں ڈال دوں گا تو ہم تجھے بتاتے ہیں ہم تیری بات کو بادر نہیں کرتے، تیری بات ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اگر تو چاہتا ہے کہ میں آپ کی بھٹی میں ڈال دے تو ڈال دے. ہمارا خدا ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے. ہمارا خدا ہمیں چھڑانے آئے گا، ہمارا خدا ہمیں بچائے گا. لیکن اگلی بات سننا رہی اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا تیرا سامنے، اور نہیں تو کہتے ہیں کہ نام ہی چھڑائے. آگلی پٹھی کے سامنے خداوند ساڈا کی کرے گا؟ کٹ لے گا. اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبود کی عبادت نہیں کریں گے. سنیں کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمارا خدا ہمیں بچائے گا. ہمیں کیا کرے گا؟ ہمیں تیرے ہاتھ سے بھی بچائے گا، ہمیں آپ کی بھٹی میں سے بھی چھڑائے گا. لیکن اگر نہ بھی چھڑائے، ایمان چیک کرو، اگر نہ بھی چھڑائے تب بھی ہم اب تیری مورت کے آگے جھکیں گے. ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے اور اس سونے کی مورت کو جو تم نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے. سنیے گا میں نے آپ کو بتایا صدرک مصر عبدالجو کے پاس عہدے تھے. کیسا صوبے چ کوئی وزیر ہوں گے، صوبے چ کوئی ناظم نظم ہون گے. انہوں نے پہلی گل کی کیتا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اپنے انہوں نے جو عہدے تھے ان کو داؤ پہ لگا دیا. کی کیتا ہے اپنے عہدے کو؟ انہوں نے کہا ساڈے جڑے عہدے تو سامنے دیتے ہوئے نا صوبے کے ساڈے لیے او اہم نہیں ہے، ساڈے لیے خدا اہم. انہوں نے کہا ہونا کیا تھا؟ انہوں نے اپنی زندگیاں داؤ پہ لگائی. وہ کہتا ہے میں کہاں ڈالوں گا تمہیں آپ کی بھٹی میں. انہوں نے اپنے عہدے داؤ پہ لگا دیے، انہوں نے اپنی زندگیاں داؤ پہ لگا دی. کہتے ہیں نو پرابلم، ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے. کچھ بھی ہو جائے ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے. ہم مر بھی جائیں گے تو ہم یہوہ خدا کے ہی رہیں گے. ہم زندہ رہیں گے، ہم تب بھی یہوہ خدا کے رہیں گے. تیرے عہدے خدا کے عہدوں سے چھوٹے ہیں. چرچ نے اپنی زندگی سنا کبھی بھی عہدے کے پیچھے، کبھی روپے پیسے کے پیچھے، کبھی زندگی کے پیچھے، کبھی شفا کے پیچھے یسوع کو نہیں چھوڑا. اسٹینڈ آن فیتھ، ایمان
किस पे खड़े हो जाए? ईमान पे खड़े हो जाए। जब आप ईमान पे खड़े हो जाएंगे तो आपका खुदा आपके लिए आपके मुखालफों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। What happened? हुआ क्या है? इन्होंने इतनी बात की है, उन्हें गुस्सा चढ़ गया। अच्छा, इन्हें मेरी गाल नहीं मनी। उन्हें क्या? उसने कहा आपकी जो भट्टी है उसकी आग को 7 गुना तेज कर दो। भट्टी पहले तो जल रही है, आग पहले तो है, कहता 7 गुना आग तेज कर दो, 7 गुना आग तेज कर दो। उसके बाद 7 गुना आग तेज कर दी गई। इनके हाथों को बांधा गया, इनको कहा गया, पहलवानों को कहा गया, वो इनको उठा के आग की भट्टी में डालो। बाइबल में लिखा है बीसवीं आयत है, और उसने अपने लश्कर के चंद जोरावर पहलवानों को हुक्म किया कि सदरक और मिशक और अब्दुल को बांधकर आग की जलती भट्टी में। अब ये मर्द अपने ज़ेरे जामों, कमीजों और अमामों समेत बांधे गए, आग की भट्टी में फेंक दिए गए। बस चूंकि बादशाह को हुक्म ताकीदी था और भट्टी की आंच नहायत तेज थी, इसलिए सदरक और मिशक और अब्दुल को उठाने वाले आग के शोरों से हलाक हो गए। और ये 3 मर्द यानी सदरक और मिशक और अब्दुल बंधे हुए आग की भट्टी में जा पड़े। हुआ क्या है? जिन्होंने आग की भट्टी में डाला है वो शख्स खुद क्या हुए हैं? आग इतनी तेज है कि जिन्होंने इनको भट्टी में डाला है वो खुद जल गए हैं, राख हो गए हैं। लेकिन आगे बादशाह कहता है, तब नबूकदनेस्सर बादशाह सरसीमा होकर जल उठा और अरकान दौलत से मुखातब होकर कहने लगा, क्या हमने 3 शख्सों को बंधवाकर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने जवाब दिया, बादशाह ने सच फरमाया। उसने कहा, देखो 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूं। मैं कितने शख्स से? देखो मैं 4 शख्स आग में खुले, सुनो कितने शख्स की कर दे खुले, क्या एनर्जी की तासीगा इन्होंने बांध के फेंका था, लेकिन वो क्या है? फेंके कितने हैं? कितने ने? 4। बादशाह कहता है ये 4 लोग हैं और तुमने बांध के फेंका था, ये खुले हुए हैं। सुनो, कहता है और उनको कुछ जरर नहीं पहुंचा। चौथे की सूरत अलाजार की सी है। वो तो चौथा वहां पर आ गया था, वो तेरा मेरा यीशु नासरी है, और उस चौथे में आके इन तीनों के बदलों को खोल दिया। चाहे सुन ले, इस्राएली असीरी में थे। कितने सर? सदरक मिशक अब्दुल जो असीरी में वहां पर सरफराज हुए थे। यहूदियों ने नाफरमानियां की और असीरी में चले गए। कलमा ना सुनियो, यहूदियों ने क्या की है? और ये नाफरमानियों के सबब से असीरी में है। लेकिन सदरक मिशक और अब्दुल वो ताबेदारी के सबब से मौत की रस्सियों में से निकल कर आ गए हैं। जैसा मैं बताना चाहता हूं, हम इस वाक़े में से देखते हैं यहूदियों ने बुत परस्ती की है तो लोग असीरी में आते हैं, लेकिन सदरक मिशक अब्दुल अपने ईमान में खड़े रहे हैं, अपने खुदा से मोहब्बत रखी है। उन्होंने कहा हमारा खुदा हमें छुड़ा देगा, और जब वो ईमान पे खड़े रहे हैं तो यीशु खुद आ गया है। मैं तुझे बताना चाहता हूं, जब तू ईमान पे खड़ा रहेगा तो तेरा यीशु तेरे लिए खुद आ जाएगा। वो आएगा, तू आपकी भट्टी में डाले जाएगा, वो आएगा। लोग तेरे ईमान के खिलाफ खड़े हो जाए। बादशाह खिलाफ खड़ोता है। कौन खिलाफ खड़ोता है? सर ये जमीनी बादशाह है, और इस जमीनी नबूकदनेस्सर बादशाह के बारे में मेरा यहोवा खुदा कहते हैं, नबूकदनेस्सर मेरा खादिम है। नबूकदनेस्सर के ज़हन को यीशु खुदा ने पकड़ा हुआ था। उन्होंने जमीनी
अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी हो जाए, बात मौत तक क्यों ना पहुंचे, लेकिन अपने ईमान पे खड़े रहना। क्या करना? रात को मैंने, खुदा ने मेरे साथ कलाम किया, कोटेशन मैंने लिखी, अगर तू गुनाह में नहीं गिरेगा, अगर तू गुनाह में नहीं गिरेगा, अगर गुनाह आपकी जिंदगी में नहीं आएगा, अगर, सुन लो जवानों सुन लो, अगर गुनाह आपकी जिंदगी में नहीं आएगा तो मसीह यीशु आपके लिए आपकी जिंदगी की बढ़ी में आएगा। अगर तेरी जिंदगी में गुनाह नहीं आएगा तो तू अपने साथ यीशु को देखेगा, तू अपने साथ यीशु को देखेगा। अब जो लोग जिन्होंने तुझे आजमाइश में डाला हुआ होगा वो भी देखेंगे कि यीशु इनके साथ है। सुन लो, बादशाह नबूकदनेस्सर ने इनको आजमाइश में डाला, क्या उसने कहा? मेरी मूरत की प्रस्तिश करो। किसकी प्रस्तिश करो? जो मबूद मैंने बनाया है उसकी प्रस्तिश करो। उन्होंने कहा नहीं, जो मबूद तूने बनाया है हम उसकी प्रस्तिश, हम अपने ईमान पे खड़े रहेंगे, हम गुनाह में नहीं गिरेंगे, मैं गुनाह से समझौता नहीं करूंगा, और जब मैं गुनाह से समझौता नहीं करूंगा मेरा ईमान है यीशु मेरे लिए आएगा। और यीशु उसके लिए, उनके लिए आया है। अब कहा जाता है, अच्छा पतरस याकूब ते यूहन्ना किने जिस यीशु ਨੂੰ ਜਲਾਲੀ ਸੂਰਜ ਚ ਪਹਾੜ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਲਾਲੀ ਸੂਰਜ ਚ ਜਲਦੀ हुई आग की भट्टी ਚ देखा। जिस यीशु के साथ मूसा कोहे तूर पर बातें करता था, वही यीशु, वही खुदा जलती हुई आग की भट्टी में आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी शिफा के लिए, कभी पैसे के लिए, कभी किसी चीज के लिए अपने ईमान को दांव पे ना लगाएं, अपने ईमान पे खड़ा हो जाओ, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। अपने लिए दुआ कर, खुदा से कह, खुदा मुझे भी ऐसा ईमान अता कर, हालात जैसे भी आ जाए मैं ईमान में खड़ा रह सकूं, और मैं खुदा का खादम होते हुए आपको ये कहता हूं, यीशु के नाम से कैसे भी हालात आपकी जिंदगी में आ जाए, मौत के हालात क्यों ना आ जाए, आप हमेशा ईमान पे खड़े रहें। I pray for you in the name of Lord Jesus कि आप हमेशा अपने ईमान पे कायम रहें, ताकि आप यीशु को अपने साथ चलते फिरते देख सकें।